Okay, audible hai? Yes. Is audible? We can start with. Okay. Let me just present my screen first and we can go further. We were just looking the different functionalities C++ provides, right? One of that is reference variable. Okay. Then one of that is function overloading. Function overloading is the example of the concept called polymorphism. Poly matlab many, morphism matlab formats. If same name but different formats are there, then that concept is called as a polymorphism. Okay, both are presenting. Let me start with. There are few concepts also, small one, like default argument, inline function, scope resolution operator. Let me take these three concepts, and then we'll go with the second part of the unit 1. Unit 1 का जो second part है वो important है, classes and object उसका concept है. So we'll just go with that. But before that, these small three concepts are there. Default arguments, very good concept. Inline function, and then scope resolution operator. Fine. So let me start with this. उसके ऊपर के जितने कंसेप्ट है वो सारे क्लियर है, राइट? फंक्शन ओवरलोडिंग, रेफरेंस वेरिएबल, फंक्शन प्रोटोटाइप, all that concepts we have done very nicely. Open one. Oh, 9 programs at the point. We have done 9 programs. Okay, good. Let me open this program for the structure only. This was function overloading, and we have seen that function can be overloaded by number of arguments. You change it argument, 1 argument, 2 arguments, like this. Type of argument. If the numbers are same, then the type should be changed. That is integer, long, float type अलग-अलग कर दो, or you can say sequence of argument also. So accordingly, it will be overloaded. Overloaded मतलब whatever function is doing, you can give some extra work to that. So function overloading. Already मैथ्स में हम ये concept देख चुके थे, operator overloading. Operator को overload करना. Fine. Save this. ERG10, and I'll just remove all the concepts, all the things. We'll have fresh window. I don't require this right now. Only one of this, and even this also. Yeah, ये पूरा blank हो गया. हाँ. एक नया concept है, program to implement. Display the use of default argument in a function. आर्ग्यूमेंट कहाँ पास होते हैं? फंक्शन में पास होते हैं, बराबर है? तो ये ऐसा कंसेप्ट है कि अगर आप कोई फंक्शन के ब्रैकेट में आर्ग्यूमेंट पास करते हो, उसको वहीं पे वैल्यू भी असाइन कर दो. अगर मेन से वैल्यूज नहीं पास की तो वहां से वैल्यूज काउंट करेगा. फॉर एग्जांपल, इफ आई टेक फंक्शन लेता हूँ, void, let us say function is addition. मैं अभी प्रोटोटाइप जैसे ही कर देता हूँ. एडिशन, इफ आई से 10, 20 and 30, सिंपल पास आउट. यहाँ पे आएगा सी आउट में लिख देंगे सी आउट addition equal to, and we can put the formula now, x plus y plus z. This is normal one. We'll see the effect of this default argument. We have not defaulted any arguments. Default value अभी कोई argument की set नहीं की है, तब तक ऐसे ही पास होगा. We'll just see the output. Control F9. Addition is 60, right? 10, 20, 30 थे. Okay. अगर now pay attention. If the z value is defaulted with value 5, z equal to integer z equal to 5, ये मैंने वैल्यू असाइन कर दी. अगर मैं नीचे से z नहीं भेजता हूँ, एडिशन 10, 20,
Can you see I have not passed third value? Normally क्या होता है, 3 आर्ग्यूमेंट तो 3 आर्ग्यूमेंट देनी ही चाहिए. Arguments, it is compulsory to give value for 3 arguments. But right now I am passing only x value, that is 10, y value, that is 20. Third value if not passed, and if the third value is defaulted over here, so this will be counted. Z की वैल्यू 5 काउंट होगी अगर आपने यहाँ से पास. सी कंपाइल एंड रन. कितना है आंसर? राइट. सो दैट मीन्स x का वैल्यू 10 लिया, y का 20 लिया, और z को डिफॉल्ट 5 काउंट कर लिया. वेरी गुड. सेम वे आप y की वैल्यू भी डिफॉल्ट कर देता हूँ 3, और मैं सिर्फ x भी पास कर सकता हूँ. एडिशन इनटू ब्रैकेट ओनली x वैल्यू. अगर x ही ओनली पास किया है तो y और z दोनों डिफॉल्ट होंगे, तो क्या आंसर आना चाहिए? 18. करेक्ट. वेरी गुड. आंसर इज 18. सो एक ये पॉइंट है, अगर मैं बिल्कुल पास ना करूं तो, और मुझे वहां पे डिफॉल्टिंग होना चाहिए, ये बिल्कुल मैंने वैल्यू पास नहीं की है. कभी ऐसा होता है ना कोई फंक्शन में कोई डिफॉल्ट वैल्यू पास करनी, जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर यूजर पास नहीं करता है तो आप डिफॉल्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.2 ऐसा कुछ लगा दो, तो उस टाइम पे काम आता है. या तो मिनिमम अमाउंट 1000 होती है, कोई यूजर पास नहीं करता, आपको वो असाइन करनी है तो आप असाइन कर सकते हो. ऐसे बहुत सारी सिचुएशन होती है जहाँ पे इफ यूजर इज नॉट प्रोवाइडिंग देन डिफॉल्ट विल बी कैलकुलेटेड. जैसे पाई का डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 3.14. हाँ, तो ऊपर आप उसको डिफॉल्ट कर दो, नीचे फंक्शन पास करने की जरूरत नहीं है. ओके. लिखा मैंने, इसमें आर्ग्यूमेंट पास नहीं की है. अगर ये कंपाइल करूंगा तो एरर बताएगा डेफिनेटली. फंक्शन एडिशन, सॉरी, ADDION. क्या लिखा? टू फ्यू पैरामीटर्स इन द कॉल टू एडिशन ब्रैकेट इंटीजर 3 टाइम्स. मतलब एडिशन का फंक्शन कॉल किया हमने, कॉल करते वक्त पैरामीटर जो भेजे वो टू फ्यू पैरामीटर्स, मतलब कम भेजे हैं. तो कितने पैरामीटर्स चाहिए? 3 के बदले 2 तो डिफॉल्ट है, तो 1 तो चाहिए, तो हमने 1 भी नहीं भेजा. बाकी तीनों में एरर नहीं दिया ऊपर में, क्योंकि उसको यहाँ पे 3 तो 3 मिल गए, यहाँ पे उसको 2 मिले लेकिन तीसरा वाला डिफॉल्ट था, यहाँ पे पहला मिला तो लेकिन दोनों डिफॉल्ट थे, तो उसने ऊपर से वैल्यूज ले ली. लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं हुआ. तो मतलब कि आपको एटलीस्ट जो रिक्वायर्ड है उतनी वैल्यू देनी ही पड़ेगी. एडिशन यहाँ पे 10 था. ओके. अच्छा, सेकंड थिंग, दूसरी एक चीज, अगर मैं x को डिफॉल्ट करूं इक्वल टू सपोज 2 और y को ना करूं, तो डिफॉल्ट करने में ये भी अलाउड नहीं है. डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट शुड बी अपीयर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन द सीक्वेंस. ये राइट साइड है, z मतलब राइट से लेफ्ट में ऐसे सीक्वेंस में अपीयर होनी चाहिए डिफॉल्ट वैल्यूज. ऐसे बीच में आप स्किप नहीं करवा सकते, बराबर है? या तो आपने z को भी नहीं दिया है, जैसे ये तो अभी कंपाइल करूंगा मैं तो एरर बताएगा. क्या लिखा उसने? देखो, मिसिंग फॉलोइंग पैरामीटर्स. हाँ, डिफॉल्ट वैल्यू मिसिंग फॉलोइंग द पैरामीटर x के बाद वाली वैल्यू उसको मिसिंग मिली, y वाली. तो अगर उसको डिफॉल्ट चाहिए तो सीक्वेंस में चाहिए, और वो भी राइट से लेफ्ट में चाहिए. इवन आप सेम एरर, दूसरा वाला तो डेफिनेटली है. ये नीचे देखिए, ये एडिशन 10 वाला है, उसमें उसने एरर बताया टू फ्यू पैरामीटर्स. तो 10 मतलब कौन सी वैल्यू को डिफॉल्ट करना है? हाँ, तो उसको ऐसा चाहिए था कि y की वैल्यू चाहिए, x और z डिफॉल्ट की है, पर कंटिन्यूअस नहीं है. मतलब वो x के बाद जो y का एरर बताया ना उसने, वैसे उसने यहाँ पे भी ले लिया कि भाई 3 आर्ग्यूमेंट चाहिए, तो 3 आर्ग्यूमेंट नहीं है. ओके, हमको एक और भी चेंज देखते हैं. सर हम तीनों को डिफॉल्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं. x y z इक्वल टू करके यहाँ पे y को भी कर दिया, तो अब नीचे नॉर्मल लिखो एडिशन, तीनों डिफॉल्ट हो गए. तो मैं कुछ भी पास ना करूँ तो भी चले. अल्ट रेफरेंस देखो कंपाइल हो गया, बिकॉज ऑल द 3 आर डिफॉल्टेड. ये लास्ट वाले में क्या आंसर आना चाहिए? 10 होना चाहिए. देखो 10 आंसर आ गया. डिफॉल्ट तीनों को कर सकते हो, और सिर्फ एक ही रूल है कि सबसे पहले जो लास्ट वाली वैल्यू होगी, मतलब राइट साइड से डिफॉल्ट स्टार्ट करो, उसके बाद उसका नेक्स्ट वाला, उसके बाद उसके नेक्स्ट, ऐसे कर सकते हो. सर y ने वैल्यू डिफॉल्ट करके नेक्स्ट आने z ने वैल्यू नीचे. हाँ, कमेंट में लिख देता हूँ. और
ये मेरा सेव क्यों नहीं हुआ? सेव, यस, लास्ट वाला सेव नहीं हुआ, एडिशन अंडू हो गया लगता है। और x की वैल्यू 2, F2 सेव, यस, अल्टर F9 एंड कंट्रोल F9 आ गया। तो दिस इज व्हाट यू कैन सी। कमेंट मिली थी तो हमें, आर्ग्यूमेंट्स कैन बी defaulted from right to left in a sequence only. बराबर है? Okay, sir. You can't skip any argument while defaulting. डिफॉल्टिंग करते वक्त कोई भी आर्ग्यूमेंट को स्किप नहीं कर सकते आप। कमेंट लिख दिया, यू जस्ट रिमेंबर इट। जैसे मैंने अगर यहाँ पे y भी छोड़ दिया, ऐसे लिख दिया, सेव F2, and this is not about न्यूमेरिक आर्ग्यूमेंट, तो कोई भी होगी, न्यूमेरिक, कैरेक्टर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कुछ भी हो, वेरिएबल कोई भी हो, उसकी वैल्यूज यहाँ पे असाइन हो सकती है इस तरह से। कंपाइल करेंगे तो एरर देगा, डिफॉल्ट वैल्यू मिसिंग फॉलोइंग पैरामीटर x, बराबर है, तो वो अलाउ नहीं करता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि आपको डिफॉल्ट देना ही है, ये तो डिपेंड अपॉन रिक्वायरमेंट है। तो C++ हैज दिस फैसिलिटी, इफ यू हैव सम रिक्वायरमेंट लाइक दिस, यू कैन डिफॉल्ट सम वैल्यूज। बराबर, समझ में आएगा? Yes, sir. वेरी Yes, sir. गुड। तो एक मिनट, तो आपने अनु स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। हाँ, एक मिनट हाईलाइट कर देता हूँ। ये कंसेप्ट बहुत छोटा सा था, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स टाइप। Done, sir. डन है, वेरी गुड। Done. हाँ, ओके, एंड आउटपुट ले लेते हैं, अल्टर F5, दिस इज द आउटपुट फॉर ईच फंक्शन कॉलिंग। Okay, sir. फाइन, Done, sir. वेरी गुड। तो ये तो इजी कंसेप्ट पता चल गया। लेट अस हैव वन सेव एज यार जी, कहाँ गए 10 दिन 11, वेरी गुड। एक छोटा सा कंसेप्ट और लिखे थे, ये 2-3 कंसेप्ट ऐसे छोटे से है। लेट मी रिमूव दिस लाइंस, and this one. Yeah, one more is there, program to implement inline functions. ये क्या है? It's called inline function now, वो देखते हैं, बराबर है। सिंपल फंक्शन देखते हैं। इवन मैं प्रोग्राम लिखूं तो भी सपोज void, नहीं करना होगा सर। हाँ, ये नया प्रोग्राम लेता हूं मैं F2, और ये है इनलाइन फंक्शन कंसेप्ट। मेन से फंक्शन में जब भी जाता है, जब भी हम मेन से कॉल करवाते हैं, तो कंट्रोल मेन से ट्रांसफर होता है फंक्शन के अंदर, प्रोसेस करता है और वापस मेन में आता है। कंट्रोल मतलब प्रोग्राम का कर्सर, राइट, उसके बारे में है। तो जैसे ये void max, सपोज मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल दे देता हूँ, और ये वेरिएबल इनका मैक्स वैल्यू फाइंड करके देता, सॉरी, इट विल शो सम मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दिस 2। हमने ऐसा किया हुआ है, मैक्स या कुछ भी आप फाइंड कर सकते हो। मैक्स मीन ले लेते हो ना, हमने मैक्सिमम ले चुके, मिनिमम वैल्यू दोनों में से। और यहाँ पे मैं वैल्यू मिनिमम इनटू ब्रैकेट लेट अस से 5,3, कौन सा मिनिमम है, फिर मिनिमम इनटू ब्रैकेट, फिर यहाँ पे कुछ सी आउट रखता हूँ मैं वापस, बराबर, सी आउट सम मैसेज सेशन दिस प्रोग्राम uses सी आउट नीचे भी लिखते तो भी ताले inline function। कॉल किया तो मैंने दिया 1,3, फिर वापस मिनिमम कॉल किया, फिर से मिल गया 2,2। क्या लॉजिक लिखवाओगे आप मुझे पहले तो, फिर हम देखते हैं इनलाइन क्या होता है। ओके, करना है, नीचे वैल्यूज पास किए मैंने, टाइम ये वैल्यू पास की 5,3, सेकंड टाइम 1,3, थर्ड टाइम 2,2। If A less than B, हाँ, अगर अब इसमें क्या आएगा, अगर लेस देन कंपेयर कर लिया तो ये क्या होगा, 2,2 में तो कंपेयर नहीं होगा ना, डबल इक्वल टू, पहले इक्वल, हाँ डबल इक्वल टू, हाँ पहले डबल इक्वल टू चेक कर लेते हैं। इफ A डबल इक्वल टू B, अगर ये इक्वल है दोनों, तो
समथिंग, ये काम करो, एल्स अगर इक्वल नहीं है तो फिर कंपेयर करो कौन छोटा है, बराबर ना। अगर इक्वल है तो सी आउट बता दो, सेशन ए एंड डबल कोट्स बी, तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी और वापस इंसर्ट और ए एंड बी आर इक्वल, ऐसा कुछ लिख के, सॉरी सेमीकोलन, आर इक्वल। अगर इक्वल नहीं है तो फिर आप जो बोल रहे थे वो कंपेयर करना पड़ेगा। क्या कंपेयर करेंगे? इफ A less than B. ए लेस देन बी है, क्या ए की वैल्यू बी से कम है? अगर कम है तो सी आउट बताओ, ए ए If F ए वेरिएबल इज मिनिमम, इज लेस मिनिमम, बराबर दोनों में से। अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली बी वाला होगा, तो बी का लिख देते हैं, बी इज मिनिमम, ऐसा लिख देते हैं। चलो ठीक है, बिकॉज वी नो द वैल्यूज, सेमीकोलन। बोलो फंक्शन रेडी हो गया नाउ। Yes, sir. हाँ, अभी जो इंटरनल प्रोसेस होती है वो ऐसी है, जो अंदर थोड़ा सा लाइन सेव करने के लिए एल्स के बाद ब्रैकेट वहीं रख देता हूँ साइड में, ठीक है, यू गेट टू नो। इफ के बाद वाला ब्रैकेट भी मैं वहीं लगा देता हूँ साइड में, लाइन थोड़ी सेव होगी, मुझे एक लाइन में हाँ ऐसे दिखाना है बस। F2 कंपाइल करो, सॉरी हाँ सेमीकोलन मिसिंग है, इसको कहाँ मिसिंग है? ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, सर ब्रेक कंपाइल हो गया, डन। सो नाउ माय कंसेप्ट इज फंक्शन विल रन आराम से, और उसका इफेक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन जब मीन कॉल होगा तो यहाँ से कंट्रोल, ये क्लियर स्क्रीन के बाद मिनिमम फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ से कंट्रोल ऊपर जाएगा, करेक्ट, वॉइड मीन के अंदर, और वो दोनों वैल्यूज लेके जाएगा और वहां प्रोसेस करेगा। ये फंक्शन का क्लोजिंग है, ये रहा है ना, यहाँ पे फंक्शन ओवर। यहां से कंट्रोल वापस आएगा, कहां पे आता है ये बताएगा? फंक्शन ओवर लिखा है, कॉलिंग के नीचे जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ उसके नीचे। हाँ फंक्शन कॉलिंग के नीचे जो सी आउट है वहां पे आगे पहुंचता है, राइट। आप फंक्शन कॉल किया तो उसके नेक्स्ट लाइन पे आके रुक जाता है, सी आउट डिस्प्ले करेगा, वापस मीन फंक्शन कॉल हुआ तो ये मीन 13 के वहां से वापस वो ऊपर, यहाँ से वापस वो ऊपर जाएगा, पूरा प्रोसेस करेगा। फंक्शन ओवर वाला पॉइंट है, वहां से वापस वो नीचे आएगा तो मीन वो 22 पे आके रुकेगा, 22 से वापस ऊपर जाएगा, ये वापस ऊपर जाएगा, वहां पे अंदर जाके सारा काम करेगा, वो लिखा है वहां से कंट्रोल बैक आएगा गेट ch पे। ऐसे वर्क करता है इंटरनली। कंट्रोल F9 रन कर दे तो आपका आउटपुट आ जाएंगे। 3 इज मिनिमम पहले में, फिर दिस प्रोग्राम, अच्छा 3 क्यों? हाँ 3 मिनिमम, सर वो तो हमने सी में भी सीखा था। बराबर है। अब टेक्निकली क्या है, इनलाइन फंक्शन क्या करता है, अगर मैं ये वॉइड आगे इनलाइन ऐसा कीवर्ड लिख दूं तो ये जितना उसका बॉडी पार्ट था ना, दिस मच पार्ट विल बी स्टेड वेयर द फंक्शन इज कॉल्ड। इंटरनली ऐसा करता है लॉजिकली, कि जहां कॉल किया ना आपने मीन 53, उसके बदले इसी लाइन पे इसकी जितनी लाइन थी ना फंक्शन की वो यहाँ पेस्ट कर देता है। सपोज कितनी लाइन है आपने ऐसे काउंट करते हैं तो अराउंड 11 लाइन्स है, हाँ 10 और 11 लाइन्स आर देयर। चलो तो ये 10 लाइन्स या 11 लाइन्स वो यहाँ जो मीन 53 था ना अपना, यहीं पे वो पेस्ट कर देता है और कंट्रोल यहाँ से बाहर नहीं जाता। तो इनलाइन फंक्शन की वजह से wherever you call the function at that place only, the code of the function, the body part of the function is pasted logically for execution, and cursor remains inside main only, and it will continue the process. Then after that it will come here. उसके बाद mean 13 अगेन फंक्शन कॉल किया है तो फंक्शन का जो बॉडी पार्ट है वो वहां से यहाँ पे जो नीचे मेन के अंदर यहीं पे, सेकंड नोट डाउन हियर, इंटरनली body part is pasted here for processing. तो इसका मतलब क्या हुआ, कर्सर मेन के बाहर निकला ही नहीं। अगर कर्सर मेन से बाहर नहीं जाता है तो बार बार
कर्सर जो बाहर जाएगा अंदर आएगा, उसका जो टाइमिंग है वो बच जाएगा। तो इनलाइन फंक्शन का यूज मेन का प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए है। तो अभी मैं इनलाइन लिखा यहाँ पे, कंपाइल करता हूँ, आउटपुट इज सेम, नो चेंज। ये तो एकदम फ्रैक्शन से आउटपुट आ गया 1 सेकंड में। तो मेन से फंक्शन में गया, फंक्शन से वापस मेन में आया। ये जो डिफरेंस मैं बता रहा था ना, वो इसमें अकर नहीं हुआ, वो बैकग्राउंड में हुआ। लेकिन बैकग्राउंड को फीलिंग यहाँ पे नहीं ला सकते, बट यू कैन अज्यूम कि इस तरह से व्हेनेवर देयर इज एंड उसको बार बार मेन में कॉल करवाते हो फंक्शन को, उस केस में अगर वो फंक्शन इनलाइन कर दो तो मेन से फंक्शन और फंक्शन टू मेन ये जो कंट्रोल ट्रांसफर होता है उसका टाइम जो है वो बच जाएगा। इट सेव्स द एग्जीक्यूशन टाइम। बोलो समझाय છે બધાને આ? હા સર. તો આ એક ફીચર એવું છે કે જે અત્યારે તો ના ખબર પડે, બટ આપણે वो स्विच केस में मेनू ऑप्शन वाला किया था कि अगर 1 2 3 4 5 6 मेनू है कोई आपके और 6 मतलब एग्जिट। अब जब तक यूजर 6 नहीं देता तब तक 1 to 5 के अंदर आपका प्रोसेस होता रहेगा और चॉइस के हिसाब से आप कुछ फंक्शन के काम करवाते हो, बराबर है। अब ऐसा मेनू दिखाते हैं। अब जब तक यूजर 6 प्रेस नहीं करता है तब तक वो मेनू बार बार आना चाहिए। 1 दिया तो ये काम होगा, सपोज मैक्सिमम। 2 दिया तो मिनिमम फाइंड होगा। 3 दिया तो स्क्वायर फाइंड करेगा। 4 दिया तो सम अदर वर्क। ये सबके फंक्शन आपने ऊपर लिखे हुए हैं मेन के ऊपर। और स्विच केस के अंदर आप ये सारे फंक्शन कॉल करवा रहे हो कि भाई केस 1 तो ये फंक्शन कॉल करो, केस 2 तो ये फंक्शन कॉल करो। ये चलता रहेगा, लूप में रहता रहेगा और continuously go out of main, it will come back into main. The cursor will go out of main, it will come back into main, depend upon your choices. कभी आपने 4 चॉइस दिया, कभी 2 चॉइस, कभी 3 चॉइस। तो मेनू ऑप्शन वाले जो भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे फंक्शन कॉल होते हैं और बार बार कर्सर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मेन टू अदर फंक्शन एंड कम बैक टू द मेन, दैट टाइम सो मच टाइम इज वेस्टेड, दैट टाइम इज सेव्ड ओवर हियर। ठीक है, यहाँ से body part is pasted for processing, control, or you can write down cursor remains here only, बराबर है, यहीं पे रहता है, बाहर जाता नहीं है। It saves execution time of main function, main function का execution time सेव करता है। तो ये इनलाइन, क्योंकि ऐसा होगा, ये तो मैंने स्विच केस बताया और उसमें 4 ही ऑप्शन बताए, 4 या 5 ऑप्शन, बट बहुत बड़े ऑप्शंस होते हैं और मेन के ऊपर बहुत सारे फंक्शन भी लिखे होंगे। तो जब 15-20 फंक्शन होते हैं और यूजर, जैसे मैंने सिचुएशन बताई कि 6 मतलब एग्जिट, तो उसके बदले वो 1 2 3 4 5 उसी के अंदर कंटिन्यूस रहेगा। तो ये प्रोग्राम आपका जब भी 10 मिनट या 15 मिनट है स्क्रीन पे, तब तक वो बार बार मेन से बाहर जाएगा, बाहर से अंदर आएगा। तो आप तो बोलोगे कि सिर्फ कर्सर बाहर जाता है ना, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा भी नहीं है। इंटरनली व्हेन यू सी, मेन से जब भी वो बाहर जाता है तो बाहर प्रोसेस करने के लिए, मतलब बाहर मतलब आउटसाइड मेन मतलब ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया, आपको पता है ना, ये ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया होता है। यहाँ से इंक्लूड के बाद ये चालू किया, यहाँ से मेन स्टार्ट हुआ तब तक, दिस एरिया इज कॉल्ड एज अ ग्लोबल डिक्लेरेशन एरिया। तो व्हेनेवर मेन कर्सर फ्रॉम मेन गोज टू आउटसाइड, it has to allocate separate memory for processing. allocate के लिए वापस रैम चाहिए उसको, तो रैम allocate करो, फिर वहां से वापस अंदर आ जाओ तो रैम क्लियर करो, फिर मेन से वापस बाहर जाओ तो अगेन मेमोरी allocate करो, बाहर से अंदर आ जाओ वापस मेमोरी क्लीन करो। ये एक्स्ट्रा जॉब जो उसको करने पड़ते हैं, दैट टेक्स मोर टाइम। इंस्टेड ऑफ दैट, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपने जहां पे फंक्शन कॉल किया है वहीं पे उसका बॉडी पार्ट आके लॉजिकली पेस्ट हो जाए और वहीं पे एग्जीक्यूट हो जाए, तो कर्सर विल नॉट गो आउटसाइड। जो मेन के लिए जो उसका रैम दिया है उसी के अंदर वो काम करेगा अच्छी तरह से। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इनलाइन फंक्शन इज। मैं उसका इनलाइन फंक्शन मेक्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन फास्टर एज the function is pasted where it is called, जहां कॉल किया वहीं पेस्ट हो जाता है, बराबर है। फंक्शन इज पेस्टेड logically where it is called and it saves
useful. There are more transfers from main to function and function to main back. तो समझ में आया इतना? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो सेकंड जो 2 लाइनें हैं वो इनलाइन फंक्शन का प्रोसेसिंग बता रहा है और बाकी जो 2 लाइनें उसका बेनिफिट बता रहे हैं, एडवांटेज। सिनेरियो में काम आता है, उस केस में काम आता है जब यूजफुल व्हेन देयर आर मोर ट्रांसफर्स फ्रॉम मेन टू फंक्शन एंड फंक्शन टू मेन बैक। तो अभी तो क्योंकि हमारा छोटा सा प्रोग्राम है, एकदम छोटा सा, कि भाई वो तो मिनिमम फाइंड करता है 2 में से और वापस आ जाता है। मेन में यहाँ पे मैंने 3 बार फंक्शन कॉल किया, 1, 2 और 3 बार। तो 3 बार वो बाहर जाएगा, अंदर आएगा, साथ में बाहर जाएगा तो मेमोरी एलोकेट करेगा, अंदर आएगा तो मेमोरी फ्री करेगा। दिस ऑल प्रोसेस इट डज एवरी टाइम, तो इट विल मेक द एग्जीक्यूशन लॉन्गर। इंस्टेड ऑफ दैट इनलाइन लिख दो और सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक कीवर्ड लिखना है, इनलाइन कीवर्ड, वो भी आगे लिख देना है बस, रिटर्न टाइप से पहले। तो इनलाइन कीवर्ड आया, रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, नेम ऑफ द फंक्शन एंड देन व्हाटएवर यू हैव। इफ आर्गुमेंट आर्गुमेंट नहीं है तो कुछ नहीं, बट रिटर्न टाइप से पहले उसको इनलाइन डिक्लेयर कर दो। इनलाइन मतलब लाइन के अंदर कौन सी लाइन? कॉलिंग वाली लाइन। फंक्शन कॉलिंग है वहां पे वो पेस्ट हो जाता है, बराबर ना? ओके, आई होप दिस इज वेरी स्मॉल कंसेप्ट एंड क्लियर कंसेप्ट, बराबर है? समझाई गयो? Yes, sir. Yes, sir. चलो तो હવે फंक्शन ओवर, हाँ, F2 અને હું આને કલર फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लिया, ओके। एंड पेज 2 जहाँ पे मेन फंक्शन है वो ले लेते हैं, स्मॉल वन, दिस इज मेन। चलो आनो पण ले लो, Thank you, sir. बराबर, डन। तो आ इजी से कंसेप्ट, विल गो बैक टू द, Output. हाँ, आउटपुट, यस, आउटपुट बताई दिए, फंक्शन रन થયું છે એનું, दिस इज द आउटपुट। लास्ट वाला आउटपुट તમે જુઓ, ઇફ કન્ડિશન ટ્રુ વાળું કરે છે, ટુ આર ઇક્વલ, એટલે એ ઇક્વલ ટુ વાળું ચેક થયું એટલે એ નીચે ગયું જ નહીં એલ્સ પાર્ટમાં, રાઈટ? મેક્સિમમ 3 પોસિબિલિટી, या either first value is smaller, second value minimum, या तो both are equal, बराबर नहीं? अगर ये 2 का हो सकता है 3 का भी हो सकता है, इस तरह से। अभी हम इसमें देखते हैं, लास्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, और उसका काम भी आगे आता है इसलिए। अच्छा, ये है स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। स्कोप को रिजोल्व करता है, मतलब बताता है कि स्कोप कितना है। अब स्कोप मतलब क्या होता है, तो ये मैं प्रोग्राम ओपन कर लेता हूं पहले। मैं बोलूं कि इनलाइन वॉइड मेन फंक्शन है, सपोज इनलाइन, तो ये वॉइड मेन फंक्शन है, उसका स्कोप कितना है, मतलब उसकी लाइफ कहां से कहां तक है, तो आप क्या बोलोगे? लास्ट कर्ली ब्रेक। Curly brackets close. हाँ, जहां पे हमने कमेंट लिखा है फंक्शन ओवर, बस इसका स्कोप मतलब उसका लाइफ, ये ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ, माय मिस्टेक, हाँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, कोडिंग पार्ट में आया और लास्ट में यहाँ पे क्लोज पे आके अटक गया, यहाँ तक उसका स्कोप है। कमेंट लिखा है ना फंक्शन ओवर, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द स्कोप ऑफ द फंक्शन। सेम जो स्कोप ऑफ द वेरिएबल भी होगा, राइट? अगर मैं इनके अंदर फॉर एग्जांपल इंटीजर x करता हूँ यहाँ पे, क्या ये x वेरिएबल मुझे ऊपर मेन फंक्शन में अवेलेबल होगा? नो सर। Why? No, sir. Why? Ain't many sir. क्यों अवेलेबल नहीं होगा? इसका स्कोप खाली मेन के अंदर तक है। हाँ, अदरवाइज दोनों चीजें एक ही प्रोग्राम फाइल में तो है, और मेन जो है उसके ऊपर ग्लोबल डिक्लेरेशन फंक्शन है मेन वाला, तो उसकी लाइफ मेन के अंदर डिक्लेयर किया तो वहां तक ही है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ दिस मेन ओवर तक। इसके बाहर वो वेरिएबल x आइडेंटिफाई नहीं होता है। इसका मतलब हमेशा जो स्कोप होता है, या तो उसका जो लाइफ है वेरिएबल का या फंक्शन का कुछ भी, वो एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर डिफाइन हो जाता है। तो हम एक प्रोग्राम देखते हैं
कि स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर क्या चीज है, ठीक है, एंड दैट विल बी हेल्पफुल। मैं पहले इसको फाइल सेव एज कर लेता हूँ, नई फाइल में PRG12 कर देते हैं और नई फाइल में इसको रिमूव कर देता हूँ, F2 सेव। आई वांट टू रिमूव दिस ऑल। सॉरी, रिमूव इट। तो एकदम ब्लैंक हो गया पूरा प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो सिंबल है ऐसा 2 कॉलन साइंस। स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर कैसे है बताता हूं मैं, बराबर। फॉर एग्जांपल ये तो इजी है, इंटीजर x, बराबर है, और मैं लिखता हूं यहाँ पे x इक्वल टू 100 और लेट अस से सी आउट सेशन x इक्वल टू x की वैल्यू। ये तो आप बोलोगे एकदम इजी है, क्या बताएगा x की वैल्यू? 100 बताएगा। तो F9 x की वैल्यू 100 बता रहा है। सिचुएशन तब आती है, 100 अब मैं यहाँ पे ग्लोबल डिक्लेरेशन जगह पे x की वैल्यू डिक्लेयर करता हूँ, इंटीजर x इक्वल टू से 20। नाउ अगर मैं फिर से प्रोग्राम रन करूँ तो x की वैल्यू क्या बताएगा? 20 या 100 बताना चाहिए क्योंकि मैं ये ग्लोबल है, ग्लोबल x है, राइट। ये वेरिएबल x ग्लोबल वाला है, वो यहाँ पे भी अवेलेबल एज वेल एज मेन के अंदर भी अवेलेबल है। अब मेन के अंदर उसका अपना खुद का है, ये वेरिएबल जो है वो लोकल टू मेन बोलते हैं, राइट। इसको ये लोकल वेरिएबल है Yes, sir. टू मेन फंक्शन। तो अब ये अंदर x वेरिएबल जो मैं सी आउट में लिखा है, ये कौन सा x काउंट करेगा, ग्लोबल वाला कि लोकल वाला? ग्लोबल वाला। हाँ, ग्लोबल तो नहीं काउंट करना चाहिए, लोकल वाला ही काउंट करता है। देखो कंट्रोल F9 रन करते हैं, स्टिल x इज 100। इसका मतलब वो ये जो डिफॉल्ट ये जो लोकल टू मेन था ना, अच्छा ये मेरा फाइल क्यों निकल गया? क्योंकि सर सी आउट तो हमने अंदर लोकल वेरिएबल को साथ में हाँ लिखा हाँ, ना सर। पर क्या है कि x वेरिएबल जो है ग्लोबल वाला वो अंदर अवेलेबल होता है ऑलवेज, यू नो, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर भी। होता है तभी अवेलेबल होता है, इनिशियलाइज नहीं हुआ होता है तभी। नहीं इनिशियलाइज हो गया ना, ये रहा x इक्वल 20 है, वैल्यू भी है 20। पर यहाँ पे तो डिफाइन नहीं किया होता 100 के तरफ, तो ही वो एग्जीक्यूट होता है 20 वाला। अच्छा ये यहाँ डिफाइन नहीं किया ऐसा, F2 यस। हाँ वो बोल रहे हैं कि लोकल हमने इनिशियलाइज नहीं किया होता हाँ। तो 20 दिखाता ना। हाँ देखते हैं, देखो ये भी बता देता हूँ कंसेप्ट। ये लोकल वाला मैंने कमेंट कर दिया, मतलब इनिशियलाइज नहीं किया, बराबर है। कंट्रोल F9 क्या आया? कोई जंक वैल्यू आई। चंक वैल्यू। आप जो बोल रहे थे कि लोकल को मैंने इनिशियलाइज नहीं किया तो वो ग्लोबल की वैल्यू बतानी चाहिए, पर वैसे भी नहीं करता है वो। मेन के अंदर आप कुछ भी ना लिखो, मेन के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब निकाल दो ना इसमें से। कौन सा ये वाला? टैक्स निकाल। हाँ अगर ये निकाल दूंगा, कंट्रोल F9, हाँ अगर निकाल दिया मैंने मेन में से तो इजी हो गया। तो यही आएगा ना, यही। हाँ पर इसमें तो क्या है कि ग्लोबल में x वेरिएबल डाला हुआ है, आपने उसको मेन के अंदर यूज कर लिया तो सिंपल हो गया। हमारा तो ये सिचुएशन है कि मेन के अंदर भी एक x वेरिएबल है, तब कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। जब मैं x लिखता हूं तो ये x कौन सा काउंट करना चाहिए? बाय डिफॉल्ट वो लोकल काउंट करता है, ठीक है। तो हम लिखते हैं ये, मतलब ये तो x वेरिएबल लोकल टू मेन है, मतलब अपना मेन का खुद का वेरिएबल है, और x में मैं 100 स्टोर भी करता हूं, प्रिंट करूंगा x, तो ये लोकल x विल बी डिस्प्लेड, बराबर ना। अभी तक तो ऐसा हो रहा है एवरीबॉडी, राइट। यस सर। हाँ ये रन करेंगे Yes, तो 100 दिख रहा है, राइट। अब मुझे अगर इस टाइम पे ग्लोबल का x यूज करना है तो फिर मुझे वो स्कोप ऑपरेटर का यूज करना पड़ेगा। देखिए सी आउट और मैं /n यहाँ पे लिखता हूँ, ऐसे लिखता हूँ सिर्फ ग्लोबल x इक्वल टू, स्कोप ऑपरेटर और x लिखना पड़ेगा। फिर से समझिए ये स्टेटमेंट,
नाउ दिस x विल बी टेकन फ्रॉम द स्कोप, स्कोप मतलब आउटर मेन। ये कॉलन साइन जो है दोनों, ये स्कोप ऑपरेटर की साइन है, वो इस x को ट्रीट करेंगे बाहर वाला x। कंट्रोल F9। यस सर। Yes, sir. तो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ये है कि वो स्कोप रिजॉल्व करता है। ये x है, उसका नॉर्मल स्कोप होता है अपना लोकल वाला। तो आप कुछ भी मत बताओ, ऐसा लिखो, ये ऊपर लिखा है मैंने, ये लिखा है, इफ यू डोंट स्पेसिफाई देन बाय डिफॉल्ट इट विल टेकन एज अ लोकल स्कोप, राइट? मतलब वो लोकली जो, लोकल में निकाल दो ना आप, यस लोकल में, लोकल में से एक्स निकाल दो सर। हाँ ये, कमेंट कर दो ना सर। हाँ ये निकाल देते हैं। तो भी हमने अगर ये स्कोप ऑपरेटर यूज किया है ना, वो नहीं होने सर, हाइपर वाला x इक्वल टू 20 को कमेंट कर दो। अच्छा कमेंट कर दे, ये कमेंट Yes, कर दिया, ओके ये कमेंट कर दिया, तो उसको ये वाली लाइन नहीं मिलेगी, ग्लोबल एक्स मिलेगा ही नहीं। हाँ देखिए, प्रिंट होगा। ओके मिलेगा ही नहीं। कुछ उसने एरर बताई, देखिए क्या लिखा, Okay, sir. अनडिफाइंड सिंबल एक्स। x हाँ जब भी आप स्कोप ऑपरेटर बताते हो ना, तो वो मेन के बाहर सर्च करने जाता है, बाहर उसने एक्स सर्च किया लेकिन मिला नहीं उसको, तो उसने अनडिफाइंड सिंबल एक्स बता दिया। अगर नॉर्मल एक्स लिखो तो उसको डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि मेन के अंदर ऑलरेडी है। यस सर। हाँ तो स्कोप बताओगे मतलब वो बाहर जाएगा, मेन के बाहर का स्कोप पकड़ेगा। तो ये एक ऑपरेटर सिंबल है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये हमेशा, ये स्कोप ऑपरेटर आपको बताता है कि आपका वेरिएबल लोकल है कि ग्लोबल है, उसके बाद जो भी लिखोगे वो एज अ ग्लोबल वेरिएबल ट्रीट करेगा। मैं लिखता हूं ग्लोबल वेरिएबल x विल बी डिस्प्लेड, ऐसा लिखता हूं, बराबर है? फाइन, कमेंट निकाल दो सर बस। हाँ save and execute, perfect. Whenever I use scope operator ऐसा कॉलन साइन 2 टाइम्स, एक बार कॉलन करोगे तो वो तो अलग ऑपरेटर हो गया, 2 टाइम्स कॉलन करनी है, स्पेशल सिंबल है। एंड डैश सिंबल, तो फॉल्स को ऑपरेटर आइडेंटिफाई के लिए होता है। हाँ स्कोप आइडेंटिफाई करने के लिए, करेक्ट, वेरिएबल का स्कोप आइडेंटिफाई करने के लिए डैश सिंबल इज यूज्ड फॉर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। ये आगे भी काम आएगा हमको, हम जो नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले ना क्लास और ऑब्जेक्ट, उसमें इसमें भी पॉइंट है आगे, कहीं पे मैं लिस्ट में दिखाऊं आपको, सर स्क्रीनशॉट लिमिटर में बताओ क्या क्या लक्ष्य से क्लास ऑब्जेक्ट क्रिएटर एक्सप्रेस पे फंक्शन इनिशियलाइज एरो ऑपरेटर दिस ऑपरेटर एंड પછી क्लास क्लास ऑब्जेक्ट। अच्छा तो पहले आप इंटरनल सब पॉइंट में से यूजिंग स्कोप ऑपरेटर, तो इस ऑपरेटर आज आवे છે ને पॉइंट आखो, ये रहा क्लासेस ऑब्जेक्ट्स, उसमें आएगा ये टॉपिक। स्कोप ऑपरेटर उसका स्कोप बताता है, फॉर स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, फाइन एंड हाँ ऑलमोस्ट हो गया। चलो तो भी जब दोनों के वेरिएबल नेम सेम है तो नाउ यू कैन टेक दिस, डन, અને અલ્ટર F5 જસ્ટ ફોર રેફરન્સ, क्या આ પ્રોગ્રામના આવા આઉટપુટ આવે, બરાબર છે? राइट, ओके। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो 12 प्रोग्राम्स है F2, ये 12 प्रोग्राम के बाद हमारे यूनिट 1 का पहला पार्ट ओवर हो गया, ये वाला, ये वाला पूरा पार्ट, राइट, स्कोप ऑपरेटर का। ये 12 प्रोग्राम में अब आपको क्लासरूम में सेंड कर रहा हूँ जस्ट फॉर योर रेफरेंस, आप उसको इम्प्रोवाइज करके यूज कर सकते हो, उसमें सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, बराबर है? थैंक यू। फाइन। तो अभी तक आपने स्क्रीनशॉट तो लिए थे, स्क्रीनशॉट के हिसाब से कई लोगों ने टाइप करके रन भी किया होगा, बट आई विल सेंड दिस 12 प्रोग्राम्स, क्योंकि हर एक प्रोग्राम के अंदर वो, अच्छा मैंने प्रोग्राम नेम नहीं लिखा है, ठीक है, क्योंकि हर एक प्रोग्राम में यहाँ पे ना ऐसे ऊपर prg12.cpp ऐसा नाम होना चाहिए। सर वो हेडिंग है ही ना, हेडिंग तो है यहाँ पे दिख रहा है, पर वो नॉर्मल फाइल भेजूंगा ना तो उसमें फिर चलेगा।
ओके चलो ना, अल्टर F3 आई क्लोज दिस फॉर, तो बाद में सर हम रन करके देख लेंगे। हाँ रन करके देखना है आपको। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर तक, बराबर है। तो फर्स्ट पार्ट इज ओवर। ओके सर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नया पार्ट स्टार्ट करेंगे, क्लासेस ऑब्जेक्ट। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी हेल्पफुल आल्सो क्लासेस। ये आपका बेस है, इसी के बेस पे आपके आगे सभी लैंग्वेज, जावा, पाइथन, सब लैंग्वेज में ये काम आता है। ओके ओके सर, सर आगे ओके लेक्चर। सर। थैंक यू सर, बाय सर। हाँ जस्ट अ मिनट, बाय सर। सर आगे लेक्चर है। ना आना પછી લેક્ચર નથી બેટા, લાસ્ટ લેક્ચર હતો। બાય બેટા, ટેક કેર। યા थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू Bye, सर। sir. बाय बाय।